Hello everyone, I welcome you all to my channel and today we are going to study chapter 11 conditionals. So let's reteach it, okay? What is conditional clause? A conditional clause is a kind of adverb clause starting with unless, provide that, as long as, etc. are also used in some cases. So you will get some adverb like if, adverb clause like if, unless, provide that, and as long as. Understood? So when you want to talk about a possible or not possible situation and its consequences, you use a conditional clause. For example, if weather is fine, they will play the match. अब there is a condition कि अगर weather सही रहा तो ही match होगा. Understood? So there are four type of conditionals. The first one is zero type of conditionals, type 1 conditional, type 2 conditional, and type 3 conditionals. So zero type of conditionals generally applies when it is scientific truth or general truth. Okay, for example, if you heat water, it vapors. That is scientific fact, right? Or when you mix salt with water, it's dissolve, is scientific fact. If you behave well, others respect you. Understood? So इसमें क्या होता है कि दोनों जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में चलते हैं, दोनों क्लॉज. इफ़ यू कुड सी, इफ़ यू हीट आइस, ये आपका प्रेजेंट टेंस है. इट मेल्ट्स मीन्स इसमें दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों ही प्रेजेंट टेंस में चलते हैं और सिंपल प्रेजेंट में चलते हैं. अंडरस्टूड? नाउ these are some question which is based on scientific truth. ठीक है? Like if you drop an ice in water, अब पानी में अगर आप एक आइस क्यूब, इफ़ यू ड्रॉप एन आइस क्यूब मिलाते हैं तो क्या होगा? इट बिगिन्स टू फ्लोट. पुट अ कॉमा एंड राइट हियर इट बिगिन्स टू फ्लोट. अब आप यू कुड सी हियर कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो इसमें क्या होता है? दोनों ही प्रेजेंट में चलेंगे. क्यों? ये साइंटिफिक ट्रुथ है, ये जनरल ट्रुथ है. दैट्स वाई वी आर पुटिंग इन पैरेलल टेंसेस. अंडरस्टूड? Now, when you drop a glass, then what will happen? When you drop a glass, then what will happen? When you drop a glass, it usually breaks into pieces. Understood? So you could write like that. It usually, USUALLY, it usually breaks, BREAKS, breaks into pieces. So this is a natural phenomena, and you could again observe that breaks is an example of simple present tense. Understood? Now, the next question, if you press this button, then what will happen? Good. Now the next, when you drop a glass, it usually breaks into pieces. That is already explained. Now come to the fourth one. If you press this button, the alarm will start ringing. Now the fourth one, if the temperature reaches 0, water will freeze. Next, if we melt ice, it will become liquid. Okay? Next, when you do not chew the food well, it takes time to get digested. When metal gets hot, it expands. When the sound reaches the eardrum begins to vibrate. Now supply the correct forms of the missing verbs. So again I would like to tell you that it is an example of zero conditionals. Zero conditionals are those conditionals where you get the example of scientific truth and general truth. ठीक है? और ये दोनों में एक खास बात ये होती है कि इफ़ के साथ में सिंपल प्रेजेंट होता है और जो क्लॉज हम ऐड करते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है. अंडरस्टूड? नाउ इफ़, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइस टर्न्स टू वाटर. अब ये सिंपल प्रेजेंट में टर्न्स हो जाएगा. आइस टर्न्स टू वाटर इफ़ यू हीट इट. नेक्स्ट, इफ़ यू डू नॉट लाइक, क्योंकि नेगेटिव दे रहा है, नॉट लगा हुआ है, तो वी विल मेक हियर सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट लाइक हो जाएगा. इफ़ यू डू नॉट लाइक दिस ड्रेस, चूज अनदर वन. नेक्स्ट,
टेल हिम टू स्पीक, अब यहाँ पे टू है तो टू अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो टेल हिम टू स्पीक टू मी इफ़ यू सी हिम, ये भी प्रेजेंट टेंस में आएगा. इफ़ यू dislikes, so we will write here dislike, not dislikes. if you dislike someone he also dislikes you, क्योंकि he जो है वो सिंगुलर वर्ब होता है और ये अपने साथ सिंगुलर सेंटेंस होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा. नेक्स्ट, if the temperature drops, so we will write here if the temperature drops to 0 degree water freezes, FREEZES, water freezes. So these are the example of zero conditionals जहाँ पर हम scientific truth और जनरल ट्रुथ की बात कर रहे होते हैं. इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप 1 कंडीशनल्स. अब इसमें क्या होता है, these conditionals are used to describe something that is likely to happen to the given condition. मतलब कि जो कंडीशन मैंने लगाया, लाइक कि अगर वेदर अच्छा होगा तभी हम कल मैच खेलेंगे, तो एक कंडीशन लग गया अगर वेदर अच्छा होगा, अगर वेदर ख़राब हुआ तो हम मैच नहीं खेलेंगे. दूसरा, अगर तुम मेरे घर आओगे, अगर तुम मेरे घर आते हो तो हम मूवी देखने चलेंगे, कंडीशन है तुम आओगे तभी चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे. तो इसमें क्या होता है, ये टाइप 1 टाइप कंडीशनल्स होता है. अंडरस्टूड. नाउ इसका जो सेंटेंस पैटर्न होता है, इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट होता है, लाइक इफ़ यू कम वी विल गो टू वॉच मूवी. तो इसमें क्या होता है, फिर जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें विल, मे, माइट, कैन, मस्ट प्लस वर्ब लगता है. अंडरस्टूड. Now you can see some example. If you put in your earnest effort, you will score well. तो ये वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट में है और इसमें आप will लगा सकते हैं, may लगा सकते हैं, might, can, must और verb की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन. कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. इफ़ यू प्ले वेल, अब इसका क्या हो जाएगा, इफ़ यू प्ले वेल योर टीम विल विन. अंडरस्टैंड, कि अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आपकी टीम जीत जाएगी. नाउ इफ़ द वेदर गेट्स वर्स, अब अगर वेदर ख़राब होता है, इफ़ द वेदर गेट्स वर्स दे विल स्टे इनडोर्स. सो विल राइट हियर दे विल stay indoors or they will stay at home, whatever it is. Okay, they won't go anywhere, so you could add accordingly, right? Next one, if you have enough time, if you have enough time I will go for a walk. So we will write here I will go for a walk. Understood. Like if you have enough time I will go for a walk, or I will go for movie, I will go for a walk, I will go for a dinner date. You could write accordingly. Next, if it stops raining we may go out or we may play outside. अंडरस्टूड. आप मे भी लगा सकते हैं, आप वी लगा सकते हैं, वी विल प्ले आउटसाइड. इट्स टोटली योर कॉल. नाउ if you want to keep fit you must take balanced diet. If you want to keep fit you must exercise, you must take balanced diet. Okay, आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस को एडिट कर सकते हैं. अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू कीप फिट यू मस्ट डू योगा, you must take balanced diet, you must take proper exercise. Next is, if you offer him more money he will join your firm. So if you offer him more money he will join your firm. Understood. Next is, if all goes well, if all goes well we shall go to vacation, we shall go to Goa, we shall go to Mumbai. Okay. Next is, if I'm not here by 9 you may call my parents. Understood. You may call my parents or you may go with my friends, you can go alone. Supply the correct forms of the missing verbs. For example, if I see him, okay, then I shall or I will reward him.
Okay, use will instead of shall. Fine. If I see him, I will reward him. Now, unless he joins the club, he will not get a badge. तो जो दूसरा पार्ट होगा वो विल, कैन, मे, माइट के साथ लगेगा, और जो पहला पार्ट होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा. ये ज़ीरो कंडीशनल्स की नहीं, वन कंडीशनल्स की बात हो रही है, जिसमें ये कंडीशन लग जाता है कि तुम अगर ऐसा, मतलब कि अगर मेरी बात ये होगी, तुम ये करोगे तभी मैं ये करूँगी, तो जो ये वाली कंडीशन हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल वन. ज़ीरो कंडीशन क्या होता है? ज़ीरो कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें साइंटिफिक ट्रूथ और जनरल ट्रुथ इन्वॉल्व होते हैं और दोनों ही प्रेजेंट टेंस में चलते हैं. लेकिन कंडीशनल वन में क्या होता है, आप एक कंडीशन देते हैं, अगर वो फुलफिल होती है तो आप उस काम को करते हैं. तो ये जो कंडीशनल्स होता है इसको हम टाइप वन कंडीशनल्स कहते हैं. इसमें जो पहला पार्ट यानी जो इफ़ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें हम विल, मे, कैन का यूज़ कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ have unless I have a quiet room, I will not be able to do any work. I will not be. I will not be able. Understood? I will not be able to do any work. If he apologize, APOLOGISESE, if he apologizes, then the principal will forgive him. Understood? Next, if she comes, here we will take her along. Understood? Now type two conditionals. These conditional contain that is improbable or unreal. The condition stated is not likely to be fulfilled. Such clauses are called unreal और hypothetical conditionals कहते हैं हम. इसमें if के बाद में सिंपल पास्ट टेंस होता है और would verb, मतलब कि ये जो होता है कुछ ऐसा फ्यूचर स्टेटमेंट होता है जो कि अनरियल लगता है, मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है. जैसे इफ़ आई वोन अ लॉटरी ऑफ 25 लाख, अब ये एकदम अनरियल सा हो गया, तब मैं फ्लैट खरीदूंगा, है ना. तो जब ये कैसे अनरियल सिचुएशंस होते हैं, अनरियल कंडीशंस अप्लाई होते हैं, तो वो टाइप टू कंडीशनल्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही न्यू द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, अब अगर वो लैंग्वेज से बात कर, अभी एनिमल की लैंग्वेज को समझ पाता, इफ़ ही वुड solve he would solve THEIR, he would solve their प्रॉब्लम्स. अब अगर वो उनकी लैंग्वेज को समझ पाता तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझता, है ना. तो ये एक कैसी बात हो गई, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गया, अनरियल सिचुएशन हो गई. नाउ नेक्स्ट, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है. तो अगर मैं होता तो मैं लोगों के कल्याण की बात करता, मतलब ये एक अनरियल है, अगर होता तो देखा जाता, है ना. इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, आई वुड डोनेट माई मनी टू द पुअर. अब अगर मैं मिलियनेयर होता तो मैं अपना मनी डोनेट कर देता. या इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, अगर मैं मिलियनेयर होता, आई वुड बाय. अब आई वुड बाय में क्या हो जाएगा, अब आई वुड बाय में अपनी कोई फेवरेट कार डाल सकते हैं, फ्लैट डाल सकते हैं, अंडरस्टूड, और पैलेस डाल सकते हैं. इफ़ द सन रोज इन द वेस्ट, अब अगर सूरज जो है वो पश्चिम से निकलता, ठीक है. इफ़ द सन रोज इन द वेस्ट, आई वुड वेक अप अर्ली. अगर ऐसा होता तो मैं जल्दी उठता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, इसीलिए मैं लेज़ी हूँ, मैं देर तक सोता हूँ. तो आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ इफ़ आई वर द घोस्ट ऑफ जूलियस सीजर, अगर मैं जूलियस सीजर का घोस्ट होता तो क्या हो जाता, आई वुड किल. अब एंथनी जो उसके कैरेक्टर हैं वो आप लिख सकते हैं, ब्रूटस. ओके. नाउ इफ़ आई कुड काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, इफ़ आई कुड काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, मतलब कि अगर मैं तारों को
गिन पाता, है ना. आई वुड बी द एक्सेप्शनल पर्सन. तो मैं क्या होता, एक्सेप्शनल पर्सन होता, बट अनलकली मैं गिन ही नहीं पाता हूँ, तो मैं कहाँ से, एक्सेप्शनल पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ यू कुड रीड योर माइंड देन आई वुड प्रोवाइड ऑल द सल्यूशन. अब अगर मैं अपने दिमाग को पढ़ पाता तो मैं सारे सल्यूशन को प्रोवाइड करता. नेक्स्ट, इफ़ द ह्यूमन बींग्स हैड विंग्स, तो क्या करते, दे वुड फ्लाई लाइक बर्ड्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मिसिंग वर्ब्स मीन्स इफ यू देन विल, है ना. तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि कैसी बातें ये कर रहा है. हाइपोथेटिकल बातें कर रहा है, रियल बातें कर रहा है. तो अगर हाइपोथेटिकल कर रहा है तो हम पास्ट टेंस में करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, गो वेंट. इफ़ यू वेंट अब्रॉड, अगर तुम अब्रॉड जाते हैं या जाओगे, यू वुड प्रोबेबली फाइंड अ जॉब. अब देखो ये अनरियल बातें हैं, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा. नाउ इफ़ यू स्टॉप ड्रिंकिंग, अब ये सही बात बोल रहा है भाई कि अगर तुमने पीना बंद कर दिया, यू विल प्रोबेबली फील हेल्दियर. अंडरस्टूड. इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग, आप वैसे भी कैन है तो आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे. इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग यू कैन प्ले द मैच. Clear? Then if he goes to bed early, he can be an early riser. Next, if you explain the situation to your mother, she may, देखो जो may होगा, can होगा, उसके बाद में will होगा, इनके साथ में हम प्रेजेंट टेंस लगाते हैं. मैंने फर्स्ट वाले में इसलिए will चेंज करके would लगा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा अनरियल सेंटेंस है कि मतलब तुम वहाँ जाओगे तो नौकरी मिलेगी. मतलब ऐसा कुछ रियल नहीं है कि हाँ तुम अमेरिका चले जाओगे तो तुमको वहाँ नौकरी मिल जाएगी. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप 3 कंडीशनल्स. ये हमारा लास्ट कंडीशनल्स है विच वी आर गोइंग टू स्टडी. इसमें क्या होता है कि दीज काइंड ऑफ कंडीशनल क्लॉज दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट, मतलब ये एक ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो पास्ट में फुलफिल नहीं हुए हैं. इन सच क्लॉजेज द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज. इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट की फॉर्म लगाते हैं. अब तक हम लोग प्रेजेंट लगा रहे थे या फिर हम लोग क्या कर रहे थे, एक सिंपल पास्ट में लगा रहे थे इफ़ वाले में, लेकिन यहाँ पे अब इफ़ वाले में पास्ट परफेक्ट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैड वन द मैच वी वुड हैव गॉट थ्रू टू द फाइनल. ठीक है. तो मतलब अब ये इच्छा पूरी नहीं हुई है. अगर तुम मैच जीते होते भाई तो हम भी जाते फाइनल्स में. जब जीते ही नहीं तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है. तो इस तरह की बातें होती हैं. अब इसमें क्या करना है, ये बहुत ही ईजी है. आपको मैच द क्लॉजेस करना है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना. दिस इज़ ईजी. इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर यू वुड ईजिली फाइंड अ जॉब. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव इनफ मनी नेक्स्ट समर I'll go to, if I have enough money next summer I will go to Delhi. Next, if the rains come in time we shall have a bumper crop, अच्छी फसल होगी. ठीक है. If you don't get this job I will be surprised in order. ठीक है. Next is if you don't want to come, if you don't want to come you needn't, तो आपको तो आने की ज़रूरत नहीं है. If he took his doctor's advice he might be, if he took his doctor's advice he might be soon well again. Understood. Now if you want to ask question please don't hesitate. ये रह गया था. Next is if you stopped smoking, अगर आप स्मोकिंग करना बंद कर देते हैं you would probably feel healthier, है ना. इसके बाद है ऐसा. नेक्स्ट है इफ़ यू लर्न टू टाइप आई कुड एक्सप्लेन टू हिम माई सेल्फ. नेक्स्ट, इफ़ ही वर you can leave at once. Understood. Next, if you went to London
he could lend it to me. सॉरी, इफ़ यू वेंट टू लंडन, अगर आप लंदन को जाते हैं, यू माइट सी द क्वीन, तो आप वहाँ की क्वीन से मिल सकते हैं. इफ़ आई आस्क फॉर मनी ही कुड लेंड इट टू मी. आई होप क्लियर. नेक्स्ट, supply the correct form of the missing verbs. So that is if I had repaired, यहाँ पे हो जाएगा if I had repaired what my car earlier, I would, यहाँ पे हो जाएगा have, I would have driven, drive का क्या हो जाएगा drive, drove, driven. तो I had driven, I would have driven you to Delhi. Now if we had gone, if we had gone by plane, we would have saved time. Understood? We would have saved time. थर्ड फॉर्म लग जाएगा, हैव लग रहा है तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. नेक्स्ट इज इफ़ द डॉक्टर हैड कम, अगर डॉक्टर समय पर आया होता a bit earlier, the patient would not have died. DIED. नेक्स्ट, इफ़ ही हैड स्कोर्ड, अगर उसने अगर 10 मार्क उसने और ज़्यादा स्कोर किए होते, ही वुड हैव गॉट. अब ये मतलब क्या है, ये जो है हमारा पास्ट में ये चीज़ फुलफिल नहीं हुई है. अंडरस्टूड? क्योंकि ही वुड हैव गॉट a first division. Now, if you had not wasted money, you could have bought a house. Now try out 5. If he had studied French, तो क्या हो जाता? I would have got marks in the examination. Unless, अब don't हटा देंगे, that is superfluous. Unless you help me, he can't get over the, unless you don't help him, you can't get. So unless already gives negative meaning, so don't use to, no need to use don't. Understood? When I did not visit her, she would be angry. When I don't visit her. Understood? नहीं, ये past में है तो ठीक है. When I did not visit her, if I did not visit her, when हटा दो if I did not visit her, she would be angry. Understood? If she took the examination, if she took, अब ये past tense में चल रहा है तो we will write here would. Next, if I would have seen, तो यहाँ पे would have नहीं लगेगा, ये हमेशा had से connect होगा. If I had seen, see, saw, seen, third form. If I had seen you, I would have said hello. So now this chapter is done. Thank you so much for watching. Keep watching the videos. It will help you to get good marks. And the second thing, you will be good at grammar portion. Okay, bye everyone.